ایک طرف صرف 313 اور دوسری طرف 1000 کا لشکر. سن لو اے مسلمانوں، ہم قریش ہیں، عرب کی سب سے طاقتور قوم. تم چند لوگ ہمیں چیلنج کرنے آئے ہو. ایک طرف کمزور اور بے سامان مسلمان اور دوسری طرف طاقتور قریش کی فوج. میدان بدر میں فضا خاموش تھی. دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے. اچانک قریش کی صفوں میں سے ایک شخص غصے میں آگے بڑھا. یہ تھا عامر بن الحضرمی. وہ اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اور اسی غصے نے جنگ کی آگ بھڑکا دی. اے مسلمانوں، کیا تم میرے بھائی کے خون کو بھول گئے ہو؟ آج بدر کے میدان میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر رہوں گا. اس للکار کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مرجع رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے. دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا اور لڑتے ہوئے حضرت مرجع رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہو گئے. اسی دوران حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کفار کا ایک تیر آیا اور وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے. یوں میدان بدر میں جنگ کی باقاعدہ ابتدا ہو چکی تھی. جب میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جہاد کا جوش پیدا کرنے کے لیے فرمایا، اے مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. یہ الفاظ سن کر ایک نوجوان صحابی کے دل میں عجیب جذبہ پیدا ہوا. یہ تھے عمیر بن الحمام الانصاری رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی واقعی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک. یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بے اختیار بول اٹھے، واہ واہ یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عمیر، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ عمیر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ اس امید پر کہا ہے کہ شاید میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، اے عمیر، تم بے شک جنتی ہو. یہ خوشخبری سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھی. کہنے لگے، اگر میں ان کھجوروں کو ختم ہونے تک زندہ رہا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی. پھر وہ فوراً تلوار لے کر کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور بے مثال بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آخرکار شہادت کا عظیم مقام حاصل کر لیا. میدان بدر میں اچانک قریش کی صفوں میں سے ایک جنگجو آگے بڑھا. وہ سعید بن الاس کا بیٹا عبید تھا. اس کے بدن پر سر سے پاؤں تک لوہے کا مضبوط لباس تھا اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ غرور سے اسلامی لشکر کو للکارنے لگا. یہ مغرور للکار سن کر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جوش میں آ گئے. وہ اپنی برچی ہاتھ میں لے کر میدان میں اترے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس جنگجو کے پورے جسم پر لوہے کی ذرہ ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں. اسی لمحے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نشانہ باندھا اور پوری قوت کے ساتھ برچی اس کی آنکھ پر ماری. برچی آنکھ کو چیرتی ہوئی سر کی ہڈی میں پیوست ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچی نکالی، مگر زور کی وجہ سے اس کا سرا مڑ گیا تھا. میدان بدر میں صفیں بندھی ہوئی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صف میں کھڑے تھے کہ اچانک ان کے دائیں اور بائیں دو کم عمر لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک نے آہستہ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کیوں بھتیجے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر مجھے ابو جہل نظر آ گیا تو یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابھی اس بات پر حیران ہی تھے کہ دوسرے نوجوان نے بھی یہی ارادہ ظاہر کر دیا. اسی دوران ابو جہل تلوار گھماتا ہوا میدان میں نظر آیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اشارے سے دونوں کو بتایا، وہ رہا ابو جہل. وہ دونوں نوجوان باز کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے، تلواروں کے وار پر وار کیے.
यहाँ तक कि अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। ये दोनों बहादुर नौजवान हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुअव्वज रजी अल्लाह अन्हु थे। और इसी तरह इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का गुरूर बदर के मैदान में खाक में मिल गया। जंगे बदर के मैदान में अबू जहल शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर चुका था। इसी दौरान उसका बेटा इकरमा गुस्से से भरकर मैदान में आया और हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु पर पीछे से हमला कर दिया। तलवार के उस वार से हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु का बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया और हाथ लटकने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस शदीद जख्म के बावजूद हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु मैदान से पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु मैदान में अबू जहल के पास पहुंचे। अबू जहल अभी तक जख्मी हालत में पड़ा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पहचान कर फरमाया, क्या तू ही अबू जहल है? मगर तकब्बुर में डूबा अबू जहल आखिरी लम्हों में भी गुरूर से बोला, मेरा कत्ल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक आदमी ही तो अपनी कौम के हाथों मारा गया है। यूं बद्र के मैदान में वो शख्स अंजाम को पहुंचा जो बरसों तक इस्लाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश रहा था। जंग खत्म हो जाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को साथ लेकर जब अबू जहल की लाश के पास से गुजरे तो लाश की तरफ इशारा करके फरमाया कि अबू जहल इस जमाने का फिरौन है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल का सर काट कर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर डाल दिया। जंगे बद्र के मैदान में कुफ्फार और मुसलमानों के लश्कर आमने सामने आ चुके। इसी मैदान में कुरैश का एक बड़ा सरदार उमैया बिन खलफ भी मौजूद था जो रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों लश्कर गित्थम गत्था हो गए तो उमैया बिन खलफ घबरा कर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। पुराने ताल्लुक की वजह से वो उनसे लिपट गया और कहने लगा कि मेरी जान बचा लीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को इस पर तरस आ गया और वो उसे मैदान से बचाकर निकालने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की नजर उस पर पड़ गई। ये वही उमैया बिन खलफ था जिसने मक्का में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने पर बेहद जुल्म सितम का निशाना बनाया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उसे देखते ही बुलंद आवाज में अंसार को पुकारा। बस फिर क्या था, अंसार के मुजाहिदीन तेजी से उसकी तरफ बढ़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया से कहा कि जमीन पर लेट जाओ। वो फौरन जमीन पर लेट गया और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उसे बचाने के लिए उसके ऊपर झुक गए। लेकिन जंग के हंगामे में अंसार के मुजाहिदीन ने चारों तरफ से हमला किया और इसी मैदान बदर में उमैया बिन खलफ अपने अंजाम को पहुंच गया। यूं वो शख्स जो कभी मुसलमानों पर जुल्म ढाता था आखिरकार बदर के मैदान में अपनी सरकशी का अंजाम देख गया। जंग बदर का मैदान अपने उरूज पर था। मुसलमान तादाद में कम थे मगर उनके दिल ईमान और यकीन से भरे हुए थे। इसी लम्हे अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई। आसमान से फरिश्तों की फौज मुसलमानों की मदद के लिए उतारी गई। सबसे पहले 1000 फरिश्ते नाजिल हुए, फिर अल्लाह के हुक्म से उनकी तादाद 3000 हो गई और फिर 5000 फरिश्तों की मदद मुसलमानों के साथ शामिल हो गई। जब मैदान बदर में जंग पूरी शिद्दत इख्तियार कर गई तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते थे, लेकिन उनके वॉर के असरात वाज़े दिखाई देते थे। किसी काफिर के चेहरे और नाक पर कोड़ों के निशान नजर आते थे और कहीं बगैर किसी इंसानी वार के दुश्मन अचानक जमीन पर गिरता दिखाई देता था। ये सब अल्लाह की गैबी मदद थी और आसमान से आने वाली फरिश्तों की फौज के कारनामे थे जिन्होंने बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद की। जंग बदर का रुख अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके मैदान में गिरते जा रहे थे। जब उक़बा, शेबा, अबू जहल और दूसरे नामवर सरदार मारे गए तो कुफ्फार मक्का के हौसले टूट गए, उनकी सफ़ें बिखर गई और मैदान बदर में भगदड़ मच गई। बिलाखिर कुफ्फार ने हथियार डाल दिए और बहुत से लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमानों ने कई लोगों को कैदी बना लिया। इस जंग में कुफ्फार के 70 आदमी मारे गए और 70 आदमी कैदी बना लिए गए। बाकी लोग अपना सामान छोड़कर जान बचाकर फरार हो गए। शिकस्त कुरैश के लिए बहुत भारी साबित हुई। उनके बड़े बड़े सरदार जो बहादुरी और जंगी महारत में मशहूर थे मैदान बदर में हमेशा के लिए खत्म हो गए। इनमें उत्तबा, शीबा, अबू जहल, अबुल बुख्तरी,
जमा, आस बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ, मंबा बिन अल हज्जाज, उक़बा बिन अबी मुयत और नजर बिन अल हारिस जैसे नामवर सरदार शामिल थे। जंग बदर में कल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर, 8 अंसार थे। इन शुहदाए बदर में से 13 हजरात तो मैदान बदर ही में मदफून हुए, मगर हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने चूंकि बदर से वापसी पर मंजिल सफरा में वफात पाई, इसलिए उनकी कब्र शरीफ मंजिल सफरा में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये तर्ज अमल रहा कि जहां कभी कोई लाश नजर आती थी, आप बदर में उसको दफन करवा देते थे। लेकिन जंग बदर में कत्ल होने वाले कुफ्फार चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा थे, सबको अलग अलग दफन करना एक दुश्वार काम था। इसलिए तमाम लाशों को आपने बदर के एक गड्ढे में डाल देने का हुक्म फरमाया। चुनाचे सहाबा किराम ने तमाम लाशों को घसीट घसीट कर गड्ढे में डाल दिया। उमैया बिन खलफ की लाश फूल गई थी। सहाबा किराम ने उसको घसीटना चाहा तो उसके आज़ा अलग अलग होने लगे, इसलिए उसकी लाश वहीं मिट्टी में दबा दी गई। जंग बदर खत्म हो चुकी थी। मैदान में कुफ्फार की लाशें पड़ी थी और उन्हें बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया। उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के किनारे तशरीफ लाए और वहां खड़े होकर उन मख्तूलीन को नाम लेकर पुकारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, ए शेबा बिन रबिया, ए अबू जहल, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? हमने तो अपने रब का वादा बिल्कुल सच्चा पाया है। यह मंजर देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इन बेजान जिस्मों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम मेरी बात को उनसे ज्यादा नहीं सुन सकते। फर्क सिर्फ ये है कि ये जवाब नहीं दे सकते। फतह के बाद 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में क़याम फरमाया। फिर तमाम अमवाले गनीमत और कुफ्फार कैदियों को साथ लेकर रवाना हुए। जब वादी सफरा में पहुंचे तो अमवाले गनीमत को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम फरमाया। जंग बदर के मौके पर एक अहम वाकया यह भी पेश आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इस अजीम मार्के में शामिल न हो सके। इसकी वजह यह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत बीबी रुक़ैया रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त शदीद बीमार थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया कि वह मदीना में ही रहकर अपनी ज़ौजा की तैमारदारी करे। चुनांचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना ही में मुक़ीम रहे और जंग बदर में शरीक ना हो सके। लेकिन जब मुसलमानों को बदर में अजीम फतह नसीब हुई और माल गनीमत तकसीम किया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को भी मुजाहिदीन बदर के बराबर हिस्सा अता फरमाया और उन्हें मुजाहिदीन बदर के बराबर अजर और सवाब की खुशखबरी भी सुनाई। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को भी असहाब बदर के फहरिस्त में शुमार किया जाता है। जंग बदर में अजीम फतह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो मदीना जाकर उस अजीम कामयाबी की खुशखबरी पहुंचाए। चुनाचे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु तेजी से मदीना की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर अहले मदीना को बताया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बदर के मैदान में शानदार फतह अता फरमाई है। यह खबर सुनते ही पूरा मदीना खुशी और मसरत से झूम उठा। अहले मदीना बेकरारी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का इंतजार करने लगे और जब यह खबर पहुंची कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ तशरीफ आ रहे हैं तो अहले मदीना जोश और खरोश के साथ शहर से बाहर निकल आए और मकाम रूहा पर पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। जंग बदर के बाद जब कैदियों को मदीना लाया गया तो उन्हें देखने के लिए लोगों का बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। लोग हैरत और गुफ्तगू के साथ उन कैदियों को देखते और आपस में बातें करते रहे। इसी दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुहतरमा हजरत बीबी सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा भी उन कैदियों को देखने के लिए तशरीफ लाए।
जब उन्होंने देखा कि इन कैदियों में उनके करीबी रिश्तेदार सुहेल भी मौजूद हैं तो बेसाख्ता बोल उठी, ए सुहेल, तुमने भी औरतों की तरह बेड़ियां पहन ली हैं। तुमसे ये ना हो सका कि बहादुर मर्दों की तरह लड़ते हुए कत्ल हो जाते। लेकिन उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के बारे में एक अजीम मिसाल कायम फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों को सहाबा किराम में तकसीम कर दिया और वाज़ेह हुक्म दिया कि इन कैदियों के साथ नरमी और अच्छा सलूक किया जाए। चुनाचे 2-2 और 4-4 कैदी सहाबा के घरों में ठहराए गए। सहाबा किराम ने उनके साथ ऐसा हुस्न सलूक किया कि उन्हें गोश्त और रोटी जैसा बेहतरीन खाना पेश करते और खुद खजूरों पर गुजारा कर लेते। यूं दुनिया ने पहली बार देखा कि इस्लाम ने दुश्मनों के कैदियों के साथ भी इंसानियत, रहम और इंसाफ का दर्स दिया। जंग बदर के बाद जब कैदियों का मामला सामने आया तो उन कैदियों में एक नाम ऐसा भी था जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गहरे तौर पर मुतासिर कर दिया। ये थे अब्दुल आस बिन अर्रबी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे। जब फिदिया का मामला आया तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने शौहर की रिहाई के लिए खास चीज भेजी। वो क्या चीज थी और उसे देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जज्बाती हो गए? ये दिल को छू लेने वाला वाकया हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी इसी तरह देखने को मिले तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।